अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या 8। धर्मार्थः उत्तम श्लोकम तंतुः तन्वन् पितॄन् यजेत यजेत रक्षाकामः पुण्यजनान् वोजकामः मरुद्गणान्। धर्मार्थोत्तमश्लोकम् धर्मार्थोत्तमश्लोकम् तन्तुः तन्वन् पितॄन् यजेत् तन्तुः तन्वन् पितॄन् यजेत् रक्षाकाम पुण्यजनान् रक्षाकाम पुण्यजनान् वोजस्कामो मरुद्गणाः वोजस्कामो मरुद्गणाः। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम धर्मार्थ उत्तम श्लोकम् तन्तु तन्वन् पितॄन् यजेत् तन्तु तन्वन् पितॄन् यजेत् रक्षा कामः पुण्यजनान् रक्षाकामः पुण्यजनान् ओजस्कामो मरुद्गणान् ओजस्कामो मरुद्गणान्। धर्मार्थोत्तमश्लोकम् तन्तु तन्वन् पितॄन् यजेत् रक्षकामः पुण्यजनान् ओजस्कामो मरुद्गणान्। माता जी, शब्दार्थ इस प्रकार है, मेरे पास हिंदी नहीं है, इंग्लिश में पढ़ता हूँ। धर्मार्थ फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, उत्तम श्लोकम द सुप्रीम लॉर्ड or persons attached to the Supreme Lord, Tantuhu, offsprings, Tanvan, and for their protection, Pitreen, the residents of Pitraloka, Yajet, must worship, Raksha Kamaha, one who desires protection, Punya Janan, pious persons, Vojak Kamaha, one who desires strength, should worship, Marudganan, the demigods. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. One should worship Lord Vishnu or his devotees for spiritual advancement in knowledge and for protection of heredity and advancement of a dynasty. One should worship various demigods. The path of religion entails making progress on the path of spiritual advancement, ultimately reviving the eternal relationship with Lord Vishnu and his impersonal effulgence, localized Paramatma feature, and ultimately his personal feature by spiritual advancement in knowledge. And one who wants to establish a good dynasty and be happy in the progress of temporary bodily relations should take shelter of the Pitas and the demigods in other pious planets.
Such different classes of worshippers or different demigods may ultimately reach the respective planets of those demigods within the universe. But he who reaches the spiritual planet is the Brahmajyoti achieves highest perfection. Om Ajnanavirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Maiham Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Saganrita Shri Vishakanitamsya. He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Swasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न था कि म्रियमाणाया, जो मृत्यु के सानिध्य है, उनका क्या कर्तव्य है। जो ये प्रश्न पूछता है उसको बुद्धिमान कहा गया है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है, वो जानता है कि मृत्यु मुझे कभी भी आ सकता है, उसको बुद्धिमान कहा गया है। मूर्ख उसको कहा जाता है कि जो बाजू वाला मर रहा है फिर भी वो सोच रहा है कि मैं हमेशा जीवित रहूँगा। उसको मूर्ख को हम क्या बोलते हैं, बकरा बोलते हैं, बकरा। हाँ, ये तो बकरा है, मैंने उनको बकरा बनाया, इसका अर्थ क्या है, उसको मूर्ख बनाया है। ये बकरा क्या करता है, बहुत सारे बकरे होते हैं, कसाई उसको क्या करता है, बहुत सारा घास देता है, खाना देता है, वो चारा खा रहा है, और कसाई क्या करता है, बाजू वाला बकरा उसको गला काटता है, हाँ, काट देता। बाजू वाला जो बकरा है, ये बकरा वो देखता है, वो आराम से वो भी खाता है, वो घास खाता रहता है। वो सोचता मरा तो वो ना, मैं तो जीवित रहूँगा, मैं नहीं मरूंगा। यही बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि आश्चर्यम अतः परम किम आश्चर्यम अतः परम। तो पूछा गया युधिष्ठिर महाराज से, यक्ष ने पूछा, क्या प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तब उसके जवाब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम अन्यः स्थावरमिच्छन्ति अतः आश्चर्यम परक्किम किम आश्चर्यम अतः परम। इससे बढ़कर क्या आश्चर्य हो सकता है, बताओ। क्या है वो, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम। रोज आप देख रहे हो कोई ये मरा, आपके दादाजी मरे, आपका दोस्त का पिताजी मरे, सब लोग रोज मरते जा रहे हैं। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, ये बड़ा आश्चर्य है। अगर आपको एक नोटिस मिले, नोटिस नहीं, डॉक्टर का एक फ़ोन आ जाए, आपने जो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट कराया था उसका रिपोर्ट मैंने देख लिया है, तो इससे पता लग रहा है कि आप 1 हफ्ते से ज़्यादा जियोगे नहीं। क्या करोगे आप?
एक हफ्ता नोटिस है आपका, एक हफ्ता ही आप क्या करोगे आप? हाँ हाँ, वक्त है तो वृंदावन चले जाएगा। मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ, आपके पास 5 करोड़ रुपए है, क्या करोगे इसका? ये आ जाए, ये अच्छा है। हाँ, ये बढ़िया है। अगर नोटिस नहीं मिलता तो नहीं दान देता। नोटिस नहीं मिलता तो, वैसे नोटिस आपके माथे पे चिपका हुआ है, कभी भी मर सकता हूँ। हाँ, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता, वो अंतर। जो देखता है मेरे माथे पे नोटिस हमेशा चिपका हुआ, मैं कभी भी मर सकता हूँ, तो वो बुद्धिमान है। नोटिस देने तक कोई इंतजार नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी है नोटिस, तो दान दे दो। तो हम अनेकों अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं हमारे जीवन में। खास करके सारे कार्यों के पीछे एकमात्र उद्देश्य रहता है, वो सुरक्षा, लेकिन सिक्योरिटी। अगर मान लो आपको मालूम है कि 1 महीने के बाद भूकंप आने वाला है और मेरा घर टूटने वाला है, तो उसमें 10 लाख रुपए का इंटीरियर खर्चा करोगे? नहीं करोगे ना। आप 10 लाख रुपए का इंटीरियर्स क्यों डाल के घर में इंटीरियर्स के ऊपर क्यों खर्चा कर रहे हो? क्योंकि बहुत विश्वास है। क्या विश्वास है? भूकंप नहीं आएगा। कितना विश्वास है देखो। हाँ, तो एक व्यक्ति विवाह करता है, किसके आधार पे विवाह करता है बताओ? हाँ, सुखी रहेंगे, सुखी रहेंगे तो बात की बात है, कम से कम ये विश्वास के साथ वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। है कि नहीं? कितना विश्वास है देखो बेचारा। हाँ? ये विश्वास तभी तो विवाह करता है ना। तो इतना प्रेम करके विवाह करके, हाँ, इतना सोना चांदी सब दे के रखता है, घर का चाबी दे के रखता है, इतना सब कुछ करता है, किस आधार पे? हाँ, ये छोड़ के नहीं जाएगी मुझे, मुझे प्रेम करेगी इस विश्वास के साथ, है कि नहीं? तो हर एक व्यक्ति विश्वास करता है, लेकिन ऐसे चीज के विश्वास करता है जो विश्वास के योग्य नहीं है। लेकिन जब हम ये बात कहेंगे भगवान कृष्ण पर विश्वास करो, बिना काम किए हाथी रोज 100 किलो ब्रेकफास्ट खाता है। हाँ, आपको भी अपना ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, आपको भी रहने का जगह मिलेगा, आपको भी खाने का चीज मिल जाएगा, बिना काम किए मिल जाएगा। इसके ऊपर कोई, हाँ, सामने दिखाई पड़ रहा है। हाँ, एक कुत्ता है, वो कॉलेज जाता है कुत्ता, 12 घंटा काम करता है, कोचिंग क्लास जाता है कुत्ता, उसको खाना पीना मिल रहा है कि नहीं? हाँ, भगवान अरेंज कर रहे कि नहीं? लेकिन हमारा विश्वास नहीं। हाँ, हमेशा ये सोचे कि मैं अपना जीवन को कैसे सिक्योर बनाऊं, कितना बैंक बैलेंस रखूं, हाँ, इतना प्रॉपर्टी रखूं, वो प्रॉपर्टी से मुझे क्या मिलेगा? मुझे थोड़ा सा, हाँ, मंथली इनकम मिल जाएगा, इससे मैं सुरक्षित रहूँगा। तो सुरक्षा के लिए व्यक्ति अनेकों अनेकों प्रकार के प्रयास करता है। हॉस्पिटल क्यों खुल रहे हैं? हॉस्पिटल में थोड़ी ना कि आपका सेहत के लिए हॉस्पिटल है, नहीं, मृत्यु को कैसे, मृत्यु से कैसे बचाया जाए, उसी के लिए हॉस्पिटल है। सेहत के लिए हॉस्पिटल नहीं है। कितने डॉक्टर लोग आपका सेहत अच्छा रहे उसके बारे में आपको बताते हैं। अगर सारे डॉक्टर मिलके आपका सेहत ठीक हो या सेहत अच्छा हो उसके विषय में अगर चर्चा करने लग जाए तो सबका धंधा बंद हो जाएगा। सारे डॉक्टर क्या चाहते बताओ? सब बीमार पड़े ताकि हमारा
हाँ, ठीक है। खास करके वो ऐसी बीमारी में आ जाए, मरणावस्था में आ जाए, फिर भी तब क्या करेंगे? जीवन भर जो कमाया है वो कैसे लुटेंगे बताओ? उसको आईसीयू में डालते हैं। आईसीयू में डाल के क्या करेंगे? पूरा का पूरा, जब तक नया पेशेंट नहीं आता है तब तक रखेंगे। जैसे मिला कि और एक पेशेंट आ रहा है, उसको ट्यूब निकाल देंगे। 5 लाख का बिल है। लेकिन हमारा कितना विश्वास देखो, क्या विश्वास है? डॉक्टर ठीक करेगा। हाँ? हम एडमिट करेंगे, रोज दवाई 5,000 का दवाई, 10,000 का दवाई दे लेके धर रहे हैं। सबको मालूम है, डॉक्टर को भी मालूम है, बच्चों को भी मालूम है, सब परिवार को मालूम है ये बचने वाला, फिर भी क्या विश्वास है? नहीं, क्या विश्वास है? अगर हम ये खर्चा नहीं करेंगे समाज क्या सोचेगा? हाँ, हाँ, कितना विश्वास है समाज के ऊपर, वो समाज के ऊपर जो कभी आपको मदद नहीं करने वाला है। कहीं मदद नहीं करना, लेकिन उनकी संतुष्टि के लिए, समाज की संतुष्टि के लिए आपको मालूम है कि ये मृत्यु सामना करने वाला है, लेकिन हम खर्चा करेंगे, नहीं तो चाचा जी क्या सोचेंगे, मामा जी क्या सोचेंगे, मेरे मित्र क्या सोचेगा, हमने खर्चा नहीं किया। और वो बिल भरने की बात आती है कि मामा चाचा काका कोई भरेगा? देखा, हमारा झूठा विश्वास किसके ऊपर है? ये समाज के ऊपर है। जो कृष्ण परमात्मा के रूप में आपके हृदय में है, इतने जन्म जन्मांतर आपके साथ में है, उसको कभी भी हमने, उनको खुश करने के लिए हमने कुछ नहीं किया। जो आपका कभी भी मदद नहीं करने वाला, एकदम बिल्कुल वो समाज वैसा चीज है आपका, आपके रिश्तेदार ऐसे लोग हैं, आपको एक पैसा नहीं देने वाला, उल्टा पैसा खाएंगे आपका। लेकिन फिर भी वो लोग क्या सोचेंगे, इसके ऊपर मैं अपने पिताजी को आईसीयू में रखूंगा, भले उसके लिए दिन का 10,000, 15,000, 20,000 भी हो जाने दो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जिसकी वजह से आपके पिताजी जिए इतने साल, उनकी सुख के लिए वो क्या सोचेंगे, कभी सोचा हमने? नहीं सोचा। मैं कार्य कर रहा हूं, उससे कृष्ण क्या सोचेंगे उसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। तो हर व्यक्ति सोचता है कि इस भौतिक जगत में सुरक्षा में प्राप्त करूं। 4 ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य में और जानवर में समान है। क्या है वो? हाँ, आहार निद्रा भय मैथुनाम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो ही एको दिको विशेषो धर्मेण विहीना पशुभिर समान। 4 ऐसी चीजें जो समान है। क्या है वो? आहार, जानवर भी खाता है, हम भी खाते हैं। आहार निद्रा, जानवर भी सोता है, हम भी सोते हैं। आहार निद्रा भय, मैथुनांचा, पारिवारिक जीवन जो है वो जानवर का भी होता है और हमारा भी, मनुष्य का भी होता है। आहार निद्रा भय मैथुन, भय सुरक्षा को प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति जानवरों में भी होता है, हमारे अंदर भी होता है। ये 4 चीजें हैं, आहार निद्रा भय और परिवार। ये 4 में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा बताओ? आहार। क्या मत बताओ? आहार मतलब आप अच्छा सा भोजन ग्रहण कर, बहुत भूख लगा है, सामने 56 भूख लगा है आपका, और भोजन ग्रहण कर बड़े मजे से। अचानक एक आतंकवादी आ गन लेके, क्या करोगे आप? हाँ, तो रुको ना, बाद में भोजन ग्रहण करो, बाद में देख लेते उसको। क्या करोगे आप? हाँ, तो क्या महत्वपूर्ण है, रक्षा या भय या भोजन?
आहार महत्वपूर्ण है, वह रक्षा महत्वपूर्ण है। हाँ, आप आराम से निद्रा सो रहे हो, हाँ, भूकंप आया, जाने जाए, बाद में देख लेंगे, तो बात ठीक हो जाएगी। करोगे? क्या महत्वपूर्ण है? परिवार साथ में बैठ के मजे से टीवी देख रहे हैं, हाँ, अचानक खबर आया कि वो बिल्डिंग में बॉम्ब है, तो क्या करोगे? हाँ, भागो। बाद में बाहर जाके चिल्लाओगे, मेरा बेटा, मेरा बेटा, हाँ? साथ में क्यों नहीं लाया? हर व्यक्ति का सबसे अगर जरूरत कोई चीज है किसी को, क्या है वो चीज? रक्षा। तो सुरक्षा चाहता है, लेकिन मृत्यु आती है। परीक्षित महाराज को भी खबर मिल गया, क्या मिला? कि 7 दिन में उनका मृत्यु होने वाला है। इसलिए मैंने प्रश्न पूछा। परीक्षित महाराज ने अच्छा काम किया। क्या काम किया? तो सीधा भागवत श्रवण करने के लिए गंगा के तट में आके बैठ गए। तो उन्होंने पूछा, मेरा कर्तव्य क्या है? भी 7 दिन में मेरा मृत्यु निश्चित है, तो मेरा कर्तव्य क्या है? ये प्रश्न परीक्षित महाराज का ही है या हमारा भी होना चाहिए? हमारे लिए और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कम से कम परीक्षित महाराज को गारंटी था कि 7 दिन जिएंगे। हमारा गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी हम सोच के बैठे, यार परीक्षित है, हमारा गारंटी। इससे परीक्षा की तैयारी करते हो। मान लो अगले महीने आपकी परीक्षा है, ठीक है, बहुत तैयारी कर रहा है लड़का। क्यों कर रहा है? विश्वास के साथ मैं परीक्षा में गेट तक जीऊंगा, परीक्षा गेट तक मैं। अगर मान लो आपको ऐसा खबर मिला, परीक्षा के आखिरी दिन आपका मृत्यु होने वाला है, पढ़ाई करोगे? नहीं है? अरे क्या झंझट है, वैसे मरना तो है, क्या फायदा? फेल होने से पहले फेल हो जाए, बाद में कौन पूछने वाला है? तो हमारा ऐसा चीज के ऊपर हमने विश्वास किया जो अनिश्चित है, कि मैं जीऊंगा। और कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि मैं भी प्राण त्याग करने वाला हूँ, ऐसा कुछ असुरक्षा की अनुभूति होती है। तब उस असुरक्षा से मुक्त होने के लिए हम ऐसे व्यक्ति और ऐसे परिस्थिति, ऐसे व्यवस्था के ऊपर व्यवस्था का शरण लेते हैं जो खुद असुरक्षित है। मैं डूब रहा हूँ, मुझे घास का तिनका मिला, क्या करूंगा? मैं उसको पकड़ूंगा, तब मैं डूबू ना। आप डूब रहे हो, आपने क्या देखा? घास का तिनका क्या है? तैर रहा है, मैं उसको पकड़ूंगा तो क्या है? वो रक्षा करेगा, विश्वास। लेकिन हम ऐसे व्यवस्था के ऊपर, ऐसे चीज के विश्वास करते हैं जो खुद का कोई ठिकाना नहीं। हार्ट का डॉक्टर है, खुद का हार्ट अटैक आता है। एक व्यक्ति मुझे बता रहा था कि जिम वाला होता है ना, कार्डियक वाला, हाँ, जिम का ट्रेनर, वो सबको ट्रेनिंग देता है, मैं आपको हार्ट अच्छा हो बराबर है उसको ट्रेनिंग देता हूँ। खुद का हार्ट अटैक आ गया। तो इस संसार में एक भी ऐसा वस्तु नहीं है, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा एक भी ऐसी परिस्थिति नहीं है, ऐसा कोई ऐसा जगह नहीं है जिसके ऊपर आपको भरोसा की आप भरोसा कर सकते हो, भरोसा किया जा सकता है। एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके ऊपर आपको भरोसा करना है या किया जा सकता है या करना चाहिए। कौन है वो? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए परीक्षित महाराज ने पूछा, मेरा कर्तव्य क्या है? तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को एक बात कहा। क्या कहा? कि बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, तस्मात् भारत सर्वात्मा
भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यदा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च इच्छते अभयम। अभय को प्राप्त करना चाहते हो, इस संसार से उत्पन्न हुआ भय से मुक्त होना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, सबकी आत्मा है सर्वात्मा, भगवान ईश्वरः हरिः, इनका क्या करना चाहिए? श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च चैच्छते अभयम। श्रोतव्या, उनके बारे में श्रवण करो, कीर्तितव्यश्च, उनके विषय में कीर्तन करो, ध्येयः, ध्यान करो, इच्छता। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक क्यों कहा? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने देखा परीक्षित महाराज बुद्धिमान है। परीक्षित महाराज कौन है? क्यों बुद्धिमान क्यों है? हाँ, क्योंकि उनको पता लग गया कि मैं मरने वाला हूं, म्रियमाणाया। हाँ, जहाँ जहाँ मैं कार्यक्रम देने जाता हूँ, कोई प्रवचन देने जाता हूँ, मेरा परिचय होता है। बहुत लोग बहुत परिचय देते हैं, परिचय पहले लिखा हुआ, उस परिचय सुनाते, कोई अपने हिसाब से परिचय देता है। बहुत मंचों में, बहुत जगह मेरा परिचय बहुत बड़े लोगों ने दिया, लेकिन मेरा परिचय, एक जगह ऐसा परिचय हुआ, मैं अभी तक भूला नहीं और भूलूंगा भी नहीं। कब की बात है? 97 में मैं ज्वाइन किया। 1997 में मैं फुल टाइम ज्वाइन किया ब्रह्मचारी के रूप में। उसके बाद मेरे पिताजी बहुत हंगामा किया, क्या क्या हंगामा किए पूछो मत। तो रोना धोना आके, एक बार मुंबई आके मंदिर में आके हड़ताल किया, क्या तो सब कुछ किया। बाद में उन्होंने कहा कि एक बार तो आओ घर। तो मैं कहूँगा आऊँगा घर, लेकिन एक शर्त पे, अगर प्रवचन रखोगे तो मैं आऊँगा। छोटा सा शहर है, 2-3 लाख का पॉपुलेशन वाला शहर है। तो मेरे पिताजी बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए शहर में, तो सबको मालूम है मेरा इस्कॉन में है, व्यक्ति है। तो कार्यक्रम जैसे रखा तो बहुत लोग आए कार्यक्रम, शहर के प्रसिद्ध लोग आए। ऐसे लोगों को छोटे शहर में इकट्ठा करना मुश्किल होता है, लेकिन पहली बार आ रहा हूँ, देखो इसका मालूम था कि ये लड़का बड़ा इंजीनियर है, प्रसिद्ध व्यक्ति है पिताजी। तो मैं प्रवचन देने बैठा, तो मेरा परिचय के लिए तो मेरे पिताजी को बुलाया कि वो रो रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे स्टेज ऐसे कुछ बोलने के लिए, लेकिन उनको स्टेज से उठा के नीचे से बैठा दिया। और मुझे बचपन से जानते, एक बड़े पुराने, बड़े विद्वान, वैष्णव है, स्मार्ट है। तो उन्होंने कहा कि मैं इनका परिचय देता हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति ने ऐसे परिचय दिया था, पुराना इंजीनियर है, ये है इस्कॉन में ऐसा। कहा कि मैं परिचय देता हूँ। तो मैं एक अपने हाथ में लिया, कहा इनका जो परिचय है, अन्य परिचय जो है, वास्तविकता उनका परिचय नहीं है। उस समय मैं लाल कपड़ा पहना हुआ था। जो लाल कपड़ा पहनता है तो लोगों के लिए नज़र से सन्यासी है, भले ही इस्कॉन के हिसाब से ब्रह्मचारी सन्यासी अलग होता है, तो उधर उनके लिए सन्यासी है। तो उन्हें माइक हाथ में लेके परिचय दिया। ये व्यक्ति जो है, जो आपके सामने बैठा है, मुझे पहला परिचय दे रहे, ये मृत्यु को साथ में लेके सोते हैं, मृत्यु को साथ में लेके जीते हैं। क्या परिचय देते हैं। तो कहा मैं उसका वर्णन करूंगा। इनको मालूम है कि ये कभी भी प्राण त्याग कर सकते हैं, मृत्यु कभी भी आ सकता है करके उनको मालूम है, ये हमको मालूम नहीं है। मैं कहा कि ज्ञान के हिसाब से देखा जाए, मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ। अनुभव के हिसाब से देखा जाए, मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ। संस्कृत का विद्वान है, पीएचडी है।
हाँ, मैं उनको बचपन से जानता हूँ, बचपन से देखा। मैं कहा लेकिन वास्तविकता में मैं कहा वेद पंडित होना महत्वपूर्ण नहीं है। वेद पंडित बहुत बैठे थे उस समय, वेदों के पंडित ब्राह्मणों की संख्या पता है, ब्राह्मण कुल से है तो इसके बहुत सारे ब्राह्मण भी आए थे, विद्वान आए थे, संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर लोग आए थे। लगा मैं पुराणों को रट लिया हूँ, रोज 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 2 घंटा प्रवचन देते हैं एक ही मंदिर में, छोटा मंदिर है, रोज 2 घंटा प्रवचन देते हैं, 500-600 लोग आके बैठ के प्रवचन सुनते हैं। ये कितने साल से? 50 साल से करीब है बस। और इतना भी बता देखो। हाँ, ऐसे ऐसे लोग हैं। कहा कि ये जानते हैं कि उनका मृत्यु कभी भी हो सकता है, इससे मृत्यु को साथ में लेके जीते हैं। हम मृत्यु को भूल के जीते हैं, यही परिचय है। मैं कहा इसीलिए वो बुद्धिमान है, हम मूर्ख हैं। हाँ, विवाह करके घर बसा के, पैसा बैंक में रखे, अच्छा ठीक इतना पैसा अभी मेरा जीवन चल जाएगा, और रमते रहते हैं मन ही मन में। हमारा माइंड में क्या चलता रहता है? हाँ, अभी ये प्रॉपर्टी लेंगे, इससे इतना भाड़ा आएगा, इससे मेरा जीवन चल जाएगा, इतना कैलकुलेशन चलता रहता है। वो अभी तो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया, कोई निकालेगा नहीं, परमानेंट फिक्स जॉब है, परमानेंट जॉब है। ये सब मन बहुत समझाता है ना। हाँ, मन में इसी एंजॉयमेंट चलता रहता है। क्या एंजॉयमेंट चलता है? भाई सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ, घर बन गया ना, एकदम फर्स्ट क्लास, अभी मेरा अच्छा पोस्ट मिल गया, फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया है। हाँ, ये मन में चलता रहता है, बोला कि ये यही, ये भूत जाता नहीं है। क्या भूत है कि मैं इधर शाश्वत रूप में निवास करूंगा, यही मेरा जीवन है। हाँ, परमानेंट नौकरी मिल गया, गवर्नमेंट जॉब मिल गया। हाँ, यूपी बिहार में तो सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। यूपीएससी की तैयारी राट राट के बाप रे बाप, बाप रे बाप। हाँ, कितनी बार लिखता है वही एग्जाम, लिख लिख के वो अंततः क्या करेगा? वो मुंबई आके ऑटो चलाएगा और क्या करेगा? मिलेगा तो है नहीं। 10 पोस्ट के लिए 10 लाख लोग हैं, कहाँ मिलेगा बताओ? क्यों ये पागलपंथी क्यों? तो गवर्नमेंट जॉब है तो हाँ, सिक्योरिटी। मैं उन्होंने कहा एक लड़के को, वो यूपीएससी का तैयारी कर करके वो फेल हो गया, 5 बार फेल हो। हाँ, फिर भी वो एग्जाम लिख लिख के, मतलब क्या प्रॉब्लम है तुमको, कितना नौकरी चाहिए? बोले ये हमको ना 20-25 हज़ार मिल गया ना तो बस। वो किया क्या है? वो उसने किया एमए, हाँ, एमकॉम किया, और किसकी परीक्षा लिख रहा है? क्लास 4 का होता है ना, प्यून का। ये प्यून का नौकरी मिल गया ना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनको ना गवर्नमेंट नौकरी है, अभी आजकल 40,000 मिलता है प्यून को भी। मैंने कहा तुमको उतना ही चाहिए ना, तुम मुंबई आओ, मैं किससे बात कराता हूँ, कुछ अच्छा सा मिल जाएगा, चिंता में। 4 बार फेल हो के, वो भी क्लास 4 की नौकरी के लिए। नहीं, कोई गवर्नमेंट का होना चाहिए, सिक्योरिटी मिल जाएगा ना, जीवन भर मिलता रहेगा पैसा। हाँ, ये सिक्योरिटी के लिए। ये पागलपंथी है, उसको मालूम नहीं है कहीं मृत्यु हो सकता है। ये परीक्षित महाराज का साक्षात्कार है, और सुखदेव गोस्वामी ने ये देखा, ये बड़ा बुद्धिमान है। बुद्धिमान मतलब ये जानता है मृत्यु, इस संसार में कोई भी व्यक्ति के ऊपर, ना कोई परिस्थिति के ऊपर, ना कोई वस्तु के ऊपर भरोसा नहीं करना, और केवल किसके ऊपर भरोसा करना? केवल भगवान के ऊपर भरोसा करना। ये जो विश्वास रखता है भगवान में, वही बुद्धिमान है। इसने भगवद्गीता में बात कहा, हाँ, हम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा माम भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। बुधा, ये बुद्धिमान है। इट्स कॉल्ड इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट ये नहीं कि अच्छा मैंने उनको फंसा के मैंने क्या किया, उससे पैसा ले लिया है, बड़ा बुद्धिमान है। नहीं, बाद में कोई और तुमको फंसाएगा। आपने 1 लाख रुपए किसी से लूटा, सोचा आपने बुद्धिमान है, घर गए तो पत्नी आपसे लेगी 1 लाख रुपए, बोलेगी मुझे इसे हो गया कम। आपने सोचा मैं इसको उल्लू बनाया, आपको उल्लू बनाने के लोग हैं, आप घर में बैठे,
है कि नहीं? आप घर में जैसे टीवी चालू करोगे कि आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, लेकिन क्या एडवर्टाइजमेंट दिखेगा? हाँ, ये शैम्पू का इस्तेमाल करो, आपका बाल ऐसे हो जाएंगे। आप खरीद के लाए, बाद में 1 साल यूज़ किया शैम्पू, बाद में ज़रूरत ही नहीं पड़ा, बाल ही नहीं तो क्या ऐसी परिस्थिति। हाँ, हम सोचते हैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, है बुद्धिमता से ये क्या है, लेकिन प्रकृति में ऐसे लोग बैठे हुए जगत में जो आपको महामूर्ख बनाए, प्रकृति मूर्ख बना देगी। तो इंटेलिजेंस मतलब यही है, ये जानना कि विश्वास केवल और केवल कृष्ण को करना, अन्य चीज के ऊपर, अन्य वस्तुओं के ऊपर विश्वास है तो आप मूर्ख हो। एक बार एक लड़का आया, आके प्रणाम किया, बड़े खुश था, मिठाई बांट रहा था सबको, मुझे भी एक पैकेट मिठाई दिया। मैं क्या किस खुशी में? मैं कार्ड दे रहा हूँ तो मैंने कहा कि मेरा विवाह है तो आप आशीर्वाद देने आई है। मैं पहचानता नहीं था उसको, लेकिन बोला कौन हो तुम? बोले आपको याद है 6 साल पहले मैं आपके पास आया था, थोड़ा सा कुछ याद आ रहा था कि चेहरा दिखाई पड़ रहा था ऐसा। हाँ प्रभु, आप वैसे बैठे थे मंदिर में, मैं आया था, आपको प्रणाम किया, तो आपने पूछा, आपसे 10 मिनट के लिए बात हुई, आपने मेरा जीवन बचाया, तब मुझे याद आया। मैं एक दिन मंदिर में बैठ के जप कर रहा था, एक व्यक्ति आके प्रणाम किया, बड़ा दुखी था चेहरा, मैंने पूछा क्या हो, क्या बातचीत छेड़ा, तो हाँ, ये लड़का मुझे कहा मैं सुइसाइड करने जा रहा हूँ। मैं सोचा सुइसाइड करने से पहले मंदिर में दर्शन करने जाऊं। इसलिए मंदिर आए पहली बार, और आप दिखे तो सोचा कि साधुओं का भी आशीर्वाद मिले। कि ये आशीर्वाद मांगे आप, इसे बातचीत कर रहे, मुझे क्यों सुइसाइड करना चाहते हो? मैं कहा मैं जिससे प्रेम किया था वो किसी और से उनका शादी हो गया। तो मैंने सोचा कि उनके बिना कैसे जी सकता हूँ, तेरे बिना क्या जीना, जीने का कोई फायदा नहीं। तो आपने याद है, आपने मुझे बड़ा अच्छा समझाया। हाँ, क्या समझाया मुझे याद नहीं था, मैंने क्या समझा बताओ? आपने कहा कि इस संसार में लड़कियों की थोड़ी ना कमी है, एक गई तो दूसरे से कर लेना, थोड़ा हौसला देने के लिए किया। बाद में ये भी कहा था आपने, देखो सुइसाइड करने से क्या समस्या दूर होगी क्या? 10-15 मिनट को समझाया, तो मुझे याद आया, थोड़ा सा उसी में याद आया। तो मैं कहा कि आपकी वजह से मैं बच गया, अभी मैं विवाह कर रहा हूँ, अभी कार्ड है, अच्छा नौकरी मिल गया मुझे, अभी अच्छी लड़की मिल गई, तो ये आशीर्वाद दीजिए। तो पता नहीं मेरा भी दिमाग खराब था लगता है, मैंने उनको बैठाया, देखो जिससे विवाह करना चाहता था तुम, ठीक है, तुमने उनसे प्रेम किया, तुमने सोचा कि वो भी तुमसे प्रेम करती है, लेकिन बात क्या था, वो किसी और से प्रेम करती और तुमको छोड़ के चली गई। अच्छा हुआ अभी वो विवाह के पहले छोड़ के चली गई, अभी जिससे अभी करने वाले हो पसीना पसीना आ गया, प्रणाम करके भाग गया। तो मैं समझ गया साधु संग नहीं चाहिए उसका भी, आशीर्वाद नहीं चाहिए।
अभी मरने वाला था वो टाइम में आशीर्वाद चाहिए, अभी शादी के टाइम आशीर्वाद नहीं चाहिए। इसी को कहते हैं महामूर्ख। तो ये तो सुखदेव गोस्वामी पहचान लिया कि ये जो व्यक्ति है कौन, परीक्षित महाराज बड़ा बुद्धिमान है। जिसको 1 हफ्ते का नोटिस मिला मृत्यु का, कोई डॉक्टर के पास नहीं गया, कोई डॉक्टर नहीं तो 10 जगह 10 फोन करते, इधर ये डॉक्टर वो डॉक्टर, कहाँ क्या, वो सीधा सीधा भागवत श्रवण करने के लिए आ गया। तो सुखदेव गोस्वामी ने सोचा, परीक्षित बुद्धिमान लोगों के लिए, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान लोगों के लिए मैंने तो उपाय दे दिया है, लेकिन मूर्खों के लिए भी कुछ उपाय देना पड़ेगा, क्योंकि ये भागवत सबके लिए है। किसके लिए है? बुद्धिमान लोगों के लिए भी है और मूर्खों के लिए भी है। से मूर्खों का मैं उपाय देता हूं करके ये अध्याय प्रारंभ करते हैं। ये अध्याय का पहले के जो 9 श्लोक है वो किसके लिए है? मूर्खों के लिए है। ये सुखदेव गोस्वामी की विशेष कृपा है कि जो भागवत केवल निर्मत्सरों के लिए है वो मूर्खों के लिए भी बनाया उन्होंने। मूल रूप में भागवत केवल किसके लिए था? निर्मत्सरों के लिए ही था। क्या श्लोक है? निगमकल्प धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा बरीरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषु वित्तक्षणात्। इसमें क्या कहा गया है कि भागवत किसके लिए है? निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम, केवल और केवल निर्मत्सरों के लिए है, यानी जिसके हृदय में मत्सरता, ईर्ष्या, जलन जिसको आप कहते हो वो नहीं है। ईर्ष्या का अर्थ क्या है? मत्सरता का अर्थ क्या है? परा उत्कर्षणम असहनम। परा मतलब दूसरों का, उत्कर्षणम उनकी प्रगति को देख के सहन नहीं कर पाना, उसको क्या कहा गया है? मत्सरता। आपके पास बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा गाड़ी है, शांति से हो, बड़े खुश हो, लेकिन आपके बाजू वाला जो घर है उसने थोड़ा सा और एक नाला बना दिया। उसने पुराना गाड़ी जो आपके पास गाड़ी उससे जो खराब था उससे उसको बेच के नया गाड़ी लिया जो आपसे अच्छा है। अशांत आप जिस गाड़ी को लेकर हाँ बड़ी बढ़िया गाड़ी है उसको देख के चिढ़ा दी। मैं प्रत्यक्ष उसको देखा। मैं 4 लड़कों से ऐसे बात कर रहा था तो नए नए थे, एक व्यक्ति ने, एक लड़के को फ़ोन आया। फ़ोन आते ही आजकल सब लोग गैजेट में बहुत घुसे रहते हैं, तो उसने अरे क्या फ़ोन है तुम्हारा नया? हाँ बोले मेरे पास ये फ़ोन है, ये है, ऐसे ऐसे बता रहा था, इसका फीचर्स है ऐसा है। तो मैं भी सुन रहा था ये क्या फ़ीचर है, वो भी बोल रहा था ये अच्छा फ़ीचर, इसका कैमरा है ऐसा। मैं समझ नहीं रहा था क्या क्या तो बोल रहा था, इतना GB का है, क्या क्या तो बोल रहा था, पिक्सल क्या क्या तो बोल रहा था। तो बड़े मज़ा आनंद ले रहा था बताते हुए इसके पास। तो अचानक और एक लड़का आया, तो आके उससे मिलने आया, उसको ये फ़ोन आया। उसके पास क्या था? उससे भी अच्छा फ़ोन था। ये देखा है लड़का इस अपने ये फ़ोन देख के चेहरे में दिखाई पड़ रहा था, पॉकेट में रख लिया उसने। अभी तो खुश था इस फ़ोन से, क्या हो गया? इसको मत्सरता कहा गया। तो निर्मत्सराणाम, भागवत केवल निर्मत्सरों के लिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी की कृपा से तो क्या बन गया भागवत? सबके लिए हो गया। कैसे हुआ? यम प्रवजन्तमनपेतमपेत कृत्यं वैपायनो विरह कातराजुराः पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मणिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षितां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुपयामि गुरुं मुनीनां। संसारियों के लिए सुखदेव गोस्वामी संसारिणाम करुणया, उनके प्रति करुणा से
आह, उन्होंने कहा, क्या कहा? हाँ, पुराण गुह्यम, ये पुराण गुह्य भागवत को उन्होंने कहा। किसको कहा? परीक्षित महाराज को कहा, सुखदेव गोस्वामी। किसके प्रति? दया के प्रति, संसारियों के लिए। तो जो भागवत केवल निर्मत्सरों के लिए था, वो अभी सुखदेव गोस्वामी कृपा से क्या हो गया? वो संसारियों के लिए भी। नारद जी ने व्यासदेव को कहा, हे व्यासदेव, तुम भागवत की रचना करो जिसके अंदर केवल और केवल कृष्ण भक्ति हो, उसके अलावा और कुछ ना हो। अमल पुराण की रचना करो। तो व्यासदेव ने कहा नारद जी को, अगर ऐसा रचना करूंगा, अमल पुराण को रचना करूंगा, जिसके हृदय में मल है वो तो पढ़ेगा नहीं। अमल अवस्था में अमल आत्मा नाम कितने होंगे? 2-4 लोग होंगे। कौन पढ़ेगा इसको? कोई नहीं पढ़ेगा। इसलिए मैंने महाभारत की रचना की, जिसके अंदर थोड़ा मसाला डाल के दिया। मसाला नहीं डालो तो सब्जी कौन खाएगा? वैसे कृष्ण का जो लीलाएं हैं उसको प्रस्तुत करने के लिए मैं थोड़ा सा धर्मार्थ काम नामक मल को डाला। आप ऐसा बोलोगे कि निर्मल, हाँ, अमलम पुराण अमलम ऐसा रखो तो कोई पढ़ेगा नहीं। नारद जी ने कहा, विचक्षणो स्यात् ये तो तुम रहती। सही बात है व्यासदेव, आपके द्वारा लिखा गया ग्रंथ जो है, जो मेरे आदेश के अनुसार लिखोगे, भागवत जो अमल पुराण है, वो कौन पढ़ेंगे? केवल और केवल विचक्षण, मतलब विचक्षण बहुत बुद्धिमान लोग मात्र पढ़ेंगे। केवल बुद्धिमान लोग ही पढ़ेंगे, रसिक लोग ही पढ़ेंगे। लेकिन ये ग्रंथ अन्य लोगों के लिए भी है। अनात्मनश्च, अनात्मनः करके जिनके मन और इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, मूर्ख है, उन लोगों के लिए भी होगा। कैसे होगा? जब ये बुद्धिमान लोग भागवत का अध्ययन करेंगे, रसास्वादन करेंगे, वही लोग भागवत का प्रवचन करेंगे, रसास्वादन करके प्रवचन करेंगे, उस रस को अन्य जो अनात्मनः, जो मूर्ख है, उनको भी वो वितरण करेंगे। तो इसलिए भागवत सब प्रकार के लोगों के लिए, केवल निर्मत्सरों के लिए होने पर भी वो संसारियों के लिए भी है, केवल बुद्धिमान के लिए होने पर भी, रसिकों के लिए होने पर भी, वो जिनका मन और इंद्रिय नियंत्रण में नहीं है उनके लिए भी। इसलिए ये अध्याय का हुआ है जिसके अंदर सुखदेव गोस्वामी ने ये बात कहा। सुनो, जो बुद्धिमान नहीं है, ब्रह्मवर्चस कामस्तु यतते ब्रह्मणः पतिम, जो ब्रह्मवर्चः, जिनको ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है, ब्रह्म का उपासना करे, और इंद्रिय कामस्तु, इंद्रियों की कामना को लिए इंद्र का पूजा करना चाहिए। प्रजा कामः प्रजापतिम, प्रजापति दक्ष इत्यादि लोगों को उपासना करना चाहिए, जिसको पुत्र संतान इत्यादि चाहिए। देवी मायाम तो श्री कामः, जिनको बहुत श्री यानी संपत्ति की आवश्यकता है, दुर्गा जी को उपासना करे। तेजस कामो विभावसुम, जिसको तेज वीर चाहिए, उनको विभावसु का पूजा करना चाहिए, जो अग्नि है। सुख कामो वसुन रुद्रान, जिसको संपत्ति चाहिए, अष्टवसुओं को पूजा करना चाहिए। और वीर कामोत्थ वीर्यवान, जो रुद्र को वीरता की वजह के लिए रुद्र का पूजा करना चाहिए। अन्नाद्य कामस्तु अदितिम, जिनको भोजन चाहिए, अदिति का उपासना करना चाहिए। स्वर्ग कामो दिते सुतान, जो दिति के पुत्र जो है उनको स्वर्ग काम के लिए आदित्यों को पूजा करना चाहिए। विश्वान देवान राज्य कामः, विश्वादेव को पूजा करो, राज्य जिसको चाहिए। साध्यान संसाधको विश्वान, जो जिनको अच्छा सफल चाहिए, उनको साध्य देवताओं का पूजा करना चाहिए। आयु कामो अश्विनी देवो, जिनको बड़ा लंबा आयुष चाहिए, अश्विनी पुराण की पूजा करना चाहिए। पुष्टिकामो इलान्यति, जिसको बहुत सारा पुष्टि चाहिए, शक्ति चाहिए, उनको शरीर की मजबूती चाहिए, पृथ्वी को पूजा करना चाहिए। जिनको प्रतिष्ठा कामः, जिसको प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, पुरुषो रोदासी लोक मातरो, उनको
लोकमातरौ यानी स्वर्ग का, पृथ्वी का पूजा करना चाहिए। और रूपाभिकामो गंधर्वान, जिनको सुंदर रूप चाहिए, किसका, गंधर्व का पूजा करना चाहिए। स्त्री कामो अप्सर उर्वशीम, उर्वशी का पूजा करना चाहिए। हाँ, स्त्री कामना, जिसके अंदर स्त्री की कामना है। आधिपत्य कामः सर्वेषां, जिनको आधिपत्य चाहिए उनको ब्रह्मा का पूजा करना चाहिए। और यज्ञाम यजेत यशस् कामः कोश कामः प्रचेतसाम, जिनको यश चाहिए इंद्र का पूजा करना चाहिए। और जिनको संपत्ति चाहिए, संपत्ति को इकट्ठा करके रखना है, उनको वरुण का पूजा करना चाहिए। और जिनको ज्ञान चाहिए, विद्या कामस्तु गिरीशम, शिव जी का पूजा करना चाहिए। दाम्पत्यार्थ उमाम सप्तीम, जिनको अच्छा पति चाहिए, हाँ, उनको पति पत्नी के बीच में अच्छा दाम्पत्य संबंध हो, उसके लिए उमा का पूजा करना चाहिए। और आज के श्लोक में धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु तन्वन पितॄन यजेत, रक्षा कामः पुण्यजनान ओजस्कामो मरुद्गणान, जिनको धर्म चाहिए उनको रक्षा करना चाहिए। धर्म का उत्तम श्लोक मतलब धर्म। और जो व्यक्ति तंतु तन्वन पितॄन यजेत, उनको बहुत सारा वंश चाहिए, उनको पितृओं का पूजा करना चाहिए। और रक्षकामान, जिसको रक्षा की आवश्यकता है, वो यक्षों का पूजा करना चाहिए। ओजस्काम मरुद्गणान, जिनको इंद्रियों में बल चाहिए, मरुतों को पूजा करना चाहिए। ये जो श्लोकों में जो जो बातें बताया गया है वो किसके लिए है? जो मूर्ख है उनके लिए। तो कल का 9वां और 10वां श्लोक में खास करके ये सब बताने के बाद अकामः सर्वकाम हुआ मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्तियोगेन यजेताम पुरुषम परम। हाँ, उदारधिहि मतलब जिसका बुद्धि बड़ा उदार है, उदार मतलब बड़ा बुद्धिमान है, हाँ, इंटेलिजेंट है, वो क्या करता है? कृष्ण का ही सेवा करता है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।